let's first talk about the agenda of today's session. So firstly, we're going to talk of the reality of UPSC, the format of the exam, some broad principles and planning for 2026. Uske baad, we are going to talk about the ideal day and ideal week for you, the approach to subjects, how to deal with optional, what is the strategy to be followed for your foundation subjects, how and when should you read NCRTs. We will discuss whether newspaper needs to be read or not. We will discuss answer writing and MCQs, and in the end, I'll also tell you a little bit about the foundation course here. ठीक है. इसके बाद, if you have any other doubts remaining, after this, if you still have any other doubts remaining, in the end, once I have discussed all of this, I will take your questions. Is this okay so far? So far, is this okay? Yes or no? Then we'll start. You can just write yes if you've understood that we are going to basically discuss everything that you need to know. ठीक है, जो भी आप जानना जरूरी है आपके लिए for your exam in 2026, everything that we need to know we are going to discuss here today. ठीक है. अब सबसे पहले let me talk about why am I doing this session. ठीक है, and it is very closely related to my own story. तो हुआ क्या था कि जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, आई वॉज इन माई ऑलमोस्ट द स्टार्टिंग ऑफ माई फाइनल ईयर in college. I was in Maulana Azad Medical College and I was at the start of my final year, just before the final year. So it was 2018 December when I had thought of preparing for this examination. Right? Actually, it was 2018 जब मैंने ये decision लिया और 2018 दिसंबर तक आई वाज श्योर दैट फुल फ्लेजेड मुझे बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई करनी है. अब इस टाइम पे मैं क्या किया, व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विश टू गिव द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, आई वांटेड टू नो हाउ डू आई प्रिपेयर. मैं गया यूट्यूब पे एंड द ओनली इंफॉर्मेशन आई गॉट out of everything that I was able to watch was twofold. One was read NCRTs from class 6 to 12th, and second was read the newspaper. मुझे सिर्फ ये दो बातें पता चली. मैंने बहुत रिसर्च करी, लोगों से बात करी. दिस वाज द मेन थिंग दैट आई गॉट टू नो कि एक तो न्यूज़पेपर पढ़ लो और एक एनसीईआरटीज पढ़ लो. अब जब ये डिस्कशन हो गया तो मैंने कहा ठीक है, आई विल स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज. तो मुझे अच्छे से याद है दैट इन 2019 जनवरी, as a final year medical college student who is about to become a doctor, I remember कि मैं 6th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहा था अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के. तो मैंने 2019 जनवरी, फरवरी और मार्च में सिर्फ ये एनसीईआरटीज पढ़ी और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करी. And then I realized that these 3 months I have only wasted because I had no guidance और मैं सिर्फ blindly, because मेरे पास proper information ही नहीं थी, ना मैंने syllabus देखा था, ना मैंने previous year questions देखे थे, ना मैंने इस एग्जाम की realities को समझा था. मैंने सीधा जाकर बस NCRTs पढ़ना स्टार्ट कर दी और न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया. Right? Aditya, if you spam the chat, I will remove you from the session. Okay, please don't spam the chat. I can just as easily disable the chat. The chat is there so that I can listen to you. Okay, what I was saying was that I was a final year student and I had no idea on how to start. So I only understood NCRTs and newspaper and nothing else. इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया and that's all I was doing. Right? मैं सिर्फ यही कर पाया था. Then I realized, and at that time I realized that I probably need to study a bit more in a directional manner. And उस time पे, thankfully, I met someone called Dr. Anand Sharma. Dr. Anand Sharma is currently in the IAS. He got selected in the IAS in the civil services exam of 2018 with a rank of 62. The reason I met him was that he was also from Maulana Azad Medical College, which was my college, and then he told me कि actually ये exam है क्या.
और फिर मेरा टाइम वेस्ट करना बंद हुआ. I joined a foundation course at a coaching. I started reading, and then I gave my first attempt in 2021. 2021 का जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेरा मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ. Now a lot of the reasons for why I did not clear mains in my first attempt was the mistakes that I had made in my preparation, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये एग्जाम क्या है. Then I corrected those mistakes, and in 2022 I gave my second attempt to the civil services exam. In my second attempt, I cleared my prelims, I cleared my mains, I cleared my interview, and got an all India rank of 297 and was allocated into the Indian Revenue Service income tax. So this is what had happened. अब ये सेशन में क्यों ले रहा हूं? Because of the role that this person played in my life and told me कि जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? उस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट टू डू. इसीलिए आई एम डूइंग दिस जॉब फॉर यू, ताकि एटलीस्ट आपको पता चले कि ये एग्जाम सिर्फ एनसीईआरटी या न्यूज़पेपर नहीं है. व्हाट दिस एग्जाम एक्चुअली इज, फुली ये एग्जाम क्या है, कैसे इसके लिए पढ़ना है, व्हाट इज द अप्रोच यू नीड टू फॉलो, ऑल ऑफ दैट वी विल डिस्कस, राइट? ताकि आप मेरी तरह 4-5 महीने वेस्ट ना कर दो, एंड एवरी सेकेंड दैट यू स्पेंड यू आर स्पेंडिंग प्रोडक्टिवली. यहां तक बात समझ आई? अब कुछ रियलिटीज ऑफ यूपीएससी सीएससी विच आर समथिंग दैट ऑल ऑफ यू नीड टू नो. देखो ये अच्छा साउंड नहीं करेगा, दिस विल नॉट साउंड गुड, बट दिस इज द ट्रूथ. आई कैन पेंट अ वेरी रोजी पिक्चर कि मेहनत करो, सिलेक्ट हो जाओगे, आईएएस बन जाओगे, डीएम बन जाओगे, लोग आपको सल्यूट करेंगे. दैट इज नॉट व्हाट दिस एग्जाम एक्चुअली इज, राइट? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द रियलिटीज ऑफ दिस एग्जाम आर. फर्स्टली, the selection rate is 0.1%. 0.1%. So if you are giving this exam, there is a 99.9% chance, only statistically speaking, that you will not get selected. Why? Where does this figure come from? 10 lakh people will fill the form and 1000 will get selected. It's a simple ratio. Okay? 10 lakh will fill the form, 1000 will get selected, approximately 1000 will get selected. So the selection rate is only 0.1%. This is the reality of this exam. Why? Why is the selection rate so low? Because the reward that you will get after selection is very high. जो जॉब आपको सिलेक्शन के बाद यहां मिलती है, it makes you, for example, 20 years senior in the government to anyone who has entered through a state service. It makes you 30 years senior to anyone in the government who has entered the government through SSC CGL. क्या मतलब हुआ इस बात का? जो पोस्ट आप ये एग्जाम क्लियर करके अचीव करोगे, वो अगर कोई स्टेट सर्विसेज का एग्जाम देके आ रहा है तो उन्हें 15 से 20 साल लगेंगे उस पोस्ट पे पहुंचने में जहां से आप स्टार्ट करोगे. अगर कोई एसएससी सीजीएल का एग्जाम देके आ रहा है तो उन्हें 30 साल लगेंगे उस पोस्ट पे पहुंचने में जहां से आप स्टार्ट करोगे. एंड सिंस द रिवॉर्ड इज वेरी हाई, जिस चीज से सबको रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा गेन्स हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू इट. एंड सिंस अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू इट, देयर आर फाइन मार्जिन्स एंड द जर्नी इज गोइंग टू बी प्रिटी टफ. So it is not going to be an easy race for any one of you. ठीक है, ये easy तो नहीं है किसी तरह से. If someone is telling you आराम से हो जाएगा, they are lying to you. Even if people clear it in their first attempt or their second attempt like I have not had an easy journey. It is going to take effort, it is going to take hard work, and it should scare you. अगर आपको डर लग रहा है ये चीज देख के, तो आपको लगना चाहिए, because जब हम डरते हैं हम ज्यादा मेहनत करते हैं, right? There are fine margins. If the selection rate is 0.1%, anyone who can increase your chances of selection by 0.1% can make your chances of selection effectively double. So you should take all the help you can get. अगर 0.1% chance है और मान लो मुझसे बात करके, I'm not saying this is true, I'm just giving an example, मान लो मुझसे बात करके आपका सिलेक्शन रेट का चांस 0.2% हो जाता है, तो आपको मुझसे बात जरूर करनी चाहिए,
क्योंकि आपका सिलेक्शन रेट इससे डबल हो रहा है. बहुत थिन और बहुत फाइन मार्जिन हैं, तो एवरीथिंग काउंट्स. थर्डली, इट इज नॉट अ फेयर रेस. ये एक फेयर रेस नहीं है. अब इससे शायद आपको लगेगा कि मैं यूपीएससी के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूं. एग्जाम बिल्कुल फेयर है. द एग्जाम इज कंप्लीटली फेयर. देयर इज नो चीटिंग, नो स्कोप ऑफ यू actually buying into or changing the exam process. But it is not a fair race because not everyone is starting from the same point. People are starting at different points. For example, 2015 में ऑल इंडिया रैंक 1 was टीना डाबी मैम. टीना डाबी मैम की सिस्टर is रिया डाबी मैम, who also got selected in her first attempt with an all India rank of 15. अब आप रिया डाबी मैम की सिचुएशन इमेजिन करो. शी हैज समबडी इन हर हाउस हु इज हर एल्डर सिस्टर हु हैज क्लियर्ड द एग्जाम एंड नॉट जस्ट क्लियर्ड द एग्जाम, टॉप्ड द एग्जाम. जिसने नेशनली टॉप किया है वो आपकी बड़ी बहन है. तो आपको हर तरह की गाइडेंस, हर तरह की हेल्प अवेलेबल है. सेकेंड सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज दैट यू आर कमिंग फ्रॉम, with what your levels of affordability are, what your academic background is, and what your parents do, this also influences the outcome in this examination. So ये fair race नहीं है. ये एग्जाम फेयर है, बट जो रेस आप दौड़ रहे हो वो फेयर रेस नहीं है. सो एनी एडवांटेज दैट यू कैन गेट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको क्रिटिसाइज करो. आई नो ये सुन के कई लोग रिजर्वेशन पे डिस्कशन करने लगेंगे. देखो, जो चीज है वो है. whatever is there, you have to accept it as reality and move on. The point I'm trying to make is that any advantage that you can garner, any advantage that you can pick up, you should pick up. Any advantage that you can get from anywhere, you should get it, because fine margins नहीं है and race fair नहीं है. राइट. एक रियलिटी और बताता हूं आपको. दिस इज नॉट टू शॉक यू और स्केयर यू, दिस इज जस्ट द ट्रूथ. Selected people will appear again. When I went to Labasna last year, I made a lot of friends. Out of them, I had 3 very close friends, 2 in the IRS, actually 4 very close friends, 2 in the IRS and 2 in the IPS. I will tell you their ranks. Rank 100 or somewhere around that, rank somewhere around 500, rank somewhere around 212, somewhere around 230. All 4 of these people actually had IAS as their first preference. ठीक है. तो इस साल in the 2024 examination this year, all 4 of these people have actually appeared again. और ये allowed है. And when they appear again, they don't lose their service. वो अभी भी IRS या IPS हैं, बट उन्हें अलाउड है दोबारा अपीयर होना. 1 साल गवर्नमेंट इसके लिए अलाउ करती है. सो सिलेक्टेड पीपल विल अपीयर अगेन एंड यू विल ऑल्सो अपीयर. तो आपको सिलेक्टेड पीपल से भी फाइट करना पड़ेगा टू गेट इनटू द सिस्टम. सो इट इज नॉट अ फेयर रेस. The margins are thin, there are fine margins, and there is a low selection rate. What does this tell you? There is no scope of mediocrity. आप मीडियोकर बनके आराम से बस चल के बिना कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, बिना मेहनत करे ये एग्जाम नहीं निकाल सकते. Anyone who clears this exam has done something or the other extraordinary in their lives. नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंटेलेक्चुअली बहुत ब्रिलियंट है. हो सकता है कई लोग इंटेलेक्चुअली उतने ब्रिलियंट ना हो, बट देन दे हैव मेड अप फॉर इट विद देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क. आपको कहीं ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द गेम यू हैव डिसाइडेड टू प्ले. ठीक है. आई होप थोड़ा सा डर लग रहा होगा, बट वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है. होता क्या है कि, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मैं खुद कोचिंग इंडस्ट्री में हूं. कोचिंग इंडस्ट्री में देयर इज अ इंसेंटिव ऑफ कीपिंग पीपल इन द प्रिपरेशन. तो लोग बहुत फ्लावरी पिक्चर बताते हैं कि हो जाएगा, पढ़ लो, बस एनसीईआरटी कर लो, तुम कर सकते हो. देखो, गेम ये है. दिस इज द ट्रू रियल गेम, राइट? एंड सिंस आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम माई सेल्फ, आई कैन से दिस विद अ लॉट ऑफ अथॉरिटी. दिस इज हाउ इट इज.
This is the fight we are fighting, and both of us, you and me, are on the same side. Our fight is with this system and with this exact reality. तो अब आई होप आपको समझ आया होगा कि चैट को स्पैम करना, मीडियोकर होना, है ना, मजे करना, ऐसे ही रैंडमली न्यूज़पेपर पढ़ना, ये एग्जाम नहीं है. दिस एग्जाम रिक्वायर्स डेडिकेटेड, persistent effort. And if you are willing to do that effort, I promise I will do more effort with you to get you selected. Now, kuch aur realities. In this journey, you will make mistakes. It is not possible for you to have a perfect strategy, do everything right at the first instance and get selected. It is possible for you to get selected in the first attempt. But agar it was possible to get here without making mistakes, जो टॉपर हैं एग्जाम के, उनके 50% मार्क्स हैं. एग्जाम है ही इतना टफ, एग्जाम है ही इतना डाइवर्स कि कहीं ना कुछ गलतियां जरूर होंगी. बट दिस हेल्प्स यू. आपके लिए ये अच्छी बात है. व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव डिसाइडेड टू डू व्हाट? स्टार्ट अर्ली. एंड सिंस ऑल ऑफ यू हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अर्ली, आपके पास थोड़ा सा टाइम है. मैंने अपने फाइनल ईयर में 2019 में, 2018 दिसंबर में, 2019 जनवरी में स्टार्ट किया. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में था. आई हैड द स्कोप ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. जल्दी शुरू करना मेरे लिए अच्छी चीज थी, बिकॉज अगर कुछ गलती हो भी गई, देयर वाज टाइम टू करेक्ट इट. सिमिलरली विद यू, यू आर स्टार्टिंग अर्ली. So mistakes are going to happen, but you are in a good position because you have taken the decision early. Right? तो सबसे पहले आपको यह समझ आना चाहिए कि गलतियां होंगी, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. देखो, जब हमारा कोई फ्रेंड या समवन हु इज क्लोज टू अस वो कोई गलती करता है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, यू कैन डू बेटर, यू कैन इंप्रूव, तुम्हें शायद पहले से पता नहीं था कि ये होने वाला है. राइट? तो सेम एटीट्यूड आप खुद के साथ रखो ओवर द नेक्स्ट 2 years. आपका एफर्ट कम नहीं होना चाहिए, आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए. अगर कुछ गलती होती है जो आप पहले फोर्सी नहीं कर सकते थे, आपको पता ही नहीं था, और कोई गलती हो गई, तो इट्स ओके, एंड इट इज गोइंग टू हैपन, एंड इट हैपेंस विद एवरीवन. मेरा भी फर्स्ट मेंस क्लियर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स आई मेड, एंड आई टेल यू व्हाट मिस्टेक्स आई मेड. नाउ, just because you have started early does not mean your time does not matter. जहां पर सिलेक्शन रेट 0.1% है, every day matters. Right? Every day matters. Every decision matters. जो भी डिसीजन आप लोगे, everything will matter. बिकॉज इतना फाइन सिलेक्शन रेट है, 0.1% सिलेक्शन रेट है. आप जो भी डिसीजन रेट लोगे, इट विल ईदर पुट योर सिलेक्शन रेट अप और डाउन, और उन्हीं थिन मार्जिन में आपको ऑपरेट करना है. सो दिस एग्जाम इज एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. इफ यू डिसाइड कि मुझे 1 हफ्ते का ब्रेक लेना है क्योंकि मेरी कजन की वेडिंग है, इट विल रिड्यूस योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन. एवरीथिंग मैटर्स, एवरी डे मैटर्स. नाउ, इससे हमें क्या समझ आया? Whatever helps your chances, whatever can increase your chances of selection, you should do it. Whatever reduces your chances of selections, you need to avoid it. And the main problem is we don't know the difference. We don't know कि ये काम करने से मेरा सिलेक्शन का चांस बढ़ रहा है या घट रहा है. And since we don't know, we will make mistakes. इन मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सको आप, कम से कम आप गलतियां करो, उसी के लिए ये सेशन रखा गया है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स आर मेड व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट योर प्रेप. तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, व्हाट वी नीड टू अवॉइड एंड व्हाट वी नीड टू डू. एंड एवरी डिसीजन देन दैट यू मेक शुड बी ऑलवेज इन फेवर ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड. आई होप यहां तक समझ आया. अब This is something I would ideally want you to note down. मैं चाहूंगा कि ये आप लिख के अपनी टेबल पे या जहां भी आप पढ़ाई करते हो वहां पर रख लो. Always keep this in front of you at all times. These are some broad principles जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं throughout the exam process. क्या है broad principles? सबसे पहले, always understand the exam. The exam is 3 different stages.
अगर मैं क्रिकेट टर्म्स में बात करूं तो यहां आपको टेस्ट मैच भी खेलना है, ओडीआई भी खेलना है और T20 भी खेलना है, और होपफुली आप वैसा टेस्ट मैच नहीं खेलोगे जैसा इंडिया आज खेल रही है। देखो, दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज अ 1 day एग्जाम। इट विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग एंड एंड इन द इवनिंग। 4 घंटे का पेपर है, 2 पेपर्स हैं, बात करेंगे डिटेल में। The main examination happens over 5 days. It's a test match. It is a long marathon. And the interview is a T20. It will take only 30 minutes. So at all 3 different stages, there are going to be 3 different types of skill sets that will be required. Then, syllabus and previous year questions are your best friends. पूरे यूपीएससी के इकोसिस्टम में एक ही ऐसी चीज है जो यूपीएससी ने हमें बताई है, वो है सिलेबस। बाकी सब तो हम गेस कर रहे हैं। और दूसरी चीज है जो यूपीएससी पहले कर चुका है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो थ्रू आउट योर जर्नी नेवर अबैंडन दीज 2 बेस्ट फ्रेंड्स। चाहे आप बाकी अपने सारे फ्रेंड से बात करना बंद कर दो, इनसे बात करना बंद मत करना। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर ऑलवेज प्रायोरिटी नंबर 1। देन, इस बारे में बात कर चुका हूं मैं। टेक ऑल द हेल्प यू कैन गेट because the margins are thin. Whatever increases your chances, do it. Then, prioritize things. Now till your exam is done in 2026, and if you have decided to prepare today, everything else can wait. Everything else can wait. This exam won't. Why? Because someone is constantly working to take your dreams away from you. कोई ना कोई आपके बीच में से ही, शायद आपके साइड में बैठ के पढ़ रहा है 2026 के लिए, who will get selected and take your seat away from you. It is violent competition. ये रियलिटी है। There are only 1000 seats. There is a very small funnel. तो उस small funnel में everything else can wait. This has to be priority 1 in your life. Then, जो सिलेबस है, अगर आप ऑप्शनल भी इंक्लूड कर लो, there are more than 19 plus 5 plus 2, approximately 26 subjects that you will have to read and remember. So always, if you have a choice, always go for conceptual clarity, not over rote learning. रट्टा मारने से एग्जाम नहीं निकलता। आप रट्टा एक लेवल तक मार सकते हो, या तो आपकी एक्सेप्शनल एबिलिटी हो that you can remember everything under the sun, right? But always prioritize conceptual clarity and logical thinking over rote learning when you have a chance. Then, always stay curious and willing to learn. Nobody, even now I've cleared this exam, even now I can't say that I know everything about this process. I still study 8 to 10 hours a day because there is no limit to the amount of learning that is possible. So stay curious and stay willing to learn. And lastly, be boring. Exam boring hai. Every day you will have to get up, do the same things over and over again. वही काम बार बार करना पड़ेगा। रोज उठ के 8 घंटे पढ़ना है, फिर उठ के 8 घंटे पढ़ना है। Have a boring life. Don't have Instagram. जब 2 साल when I was preparing between 2021 and 22, for both those years मेरे पास Nokia Asha 200 का फोन था। If you go to my Instagram, you will see that 2020 के बाद वहां पे कोई पोस्ट नहीं है, because 21 और 22 में I had no Instagram, no social media, because it was important to be boring. It is important to have your life structured only around one thing, which is getting this exam done, because किसी और की जरूरत होगी, you have to compete with them. Now, what not to do? Never look for quick solutions or shortcuts. अगर आपको लगता है कि एग्जाम में कोई आपको शॉर्टकट दे देगा, राइट? इफ समबडी विल गिव यू कि ये पढ़ लो बस 15 पेजेस से हो जाएगा, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन. अगर ऐसा होता तो वो सबको अवेलेबल होता. इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट मार्केट एंड अ ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री. सबके पास सारी रिसोर्सेज का एक्सेस है. सो नेवर लुक फॉर क्विक सॉल्यूशंस. देन नेवर मल्टीप्लाई योर sources. Whatever you cannot revise, if you cannot revise something, don't read it.
अगर आप कोई ऐसी चीज है जो आप सिर्फ एक ही बार पढ़ पाओगे, उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे, इट इज बेटर नॉट टू रीड इट, लेट इट गो. देन नेवर टेक एडवाइस फ्रॉम नॉन क्रेडिबल पीपल. ये आप लोगों के लिए आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस ऑन दिस स्लाइड. If someone has not given the interview of this exam, they are not credible enough to give you advice. अगर किसी ने इंटरव्यू दिया है या क्लियर किया है, they know something about the process. But आपके साथ में कोई भैया लाइब्रेरी में प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई दीदी जिसने 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, don't take advice from them, because again you will end up wasting your time, and everything matters, every decision will matter. So never take advice from someone who is not credible. एंड क्रेडिबिलिटी कैसे डिफाइन करो? जस्ट आस्क देम इफ दे हैव गिवन द इंटरव्यू. अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो उनकी बात सुनने में सेंस है, अगर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है तो उनकी बात नहीं सुननी है. देन ओवर स्ट्रेसिंग अबाउट करंट अफेयर्स, इसकी बात हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, तो इसको मैं अभी के लिए छोड़ देता हूं. एंड लास्टली व्हाट नॉट टू डू. थिंकिंग दैट दिस एग्जाम इज फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल. इट्स नॉट. It is not only the extraordinary people who are making it. Who is making it in this exam? Who are doing these ordinary things in an extraordinary manner. वही किताब पढ़नी है बट पढ़ अच्छे से रहे हैं, वही आंसर लिखने हैं बट वो अच्छे से लिख रहे हैं, वही एमसीक्यूज हैं, they are just doing that better. अब एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड. आपको क्या लगता है इन द एंटायर यूपीएससी सीएससी एग्जाम, आप मुझे एक परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हो, what percentage is actually assigned to current affairs? I will tell you what. In prelims, it is approximately 15%. In mains, approximately 20%. Interview is person to person based. अब अगर कोई ऐसी चीज है जिसका 15% और 20% वेटेज है, तो हम अप्रोक्सीमेटली एवरेज 17.5% मान लेते हैं. जिस चीज की वेटेज 17.5% है उसे टाइम भी 17.5% ही देना है. जिस चीज की वेटेज 17.5% है उसको टाइम 17.5% ही देना है, उसे पूरा टाइम नहीं देना, उसके बारे में ओवर स्ट्रेस नहीं करना. राइट? जिस चीज की जितनी वेटेज है उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी. अगर लेट्स से हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी सी दिस नंबर इज 15%, अगर 15% करंट अफेयर्स है तो बाकी क्या है? व्हाट इज द रेस्ट? इट इज स्टैटिक नॉलेज. It is knowledge what is written in the books that have not changed for years and years. So 85% of this exam is static knowledge. Without reading the newspaper, do you think you can clear UPSC? Yes. आपके सामने there is someone standing who has cleared UPSC without reading the newspaper. ठीक है? But second question is, without reading static books, जो नॉर्मल हमारी बुक्स हैं, स्टैटिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, विदाउट रीडिंग देम कैन यू क्लियर यूपीएससी? क्या बुक्स पढ़े बिना, जो स्टैटिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर की बुक, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज, इकोनॉमी की एनसीईआरटी, इन बुक्स को पढ़े बिना कैन वी क्लियर? नेवर. बिकॉज दीज आर 85% ऑफ द एग्जाम, and people who are getting rank 1 are scoring close to 50%. तो सबसे पहला हमारा जो फोकस है वो इन बुक्स पे होना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़े बिना. I have not read the newspaper in the 2 years when I was preparing dedicatedly and I cleared because I was spending all my time reading these books. ठीक है, आगे बात करते हैं. अब आई होप आपको पहले ये सारे प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे ऑन व्हाट नॉट टू डू. Don't look for quick solutions. Whatever, don't have multiple sources. If you can't revise it, don't read it. Don't take advice from non-credible people. Don't overstress about current affairs. And lastly, do ordinary things, but do them in an extraordinary manner. अब जरा हम समझते हैं
कि जो आपका एग्जाम है, नाउ व्हाट वील डू इज वी विल अंडरस्टैंड द एग्जाम, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट, पूरा डिटेल में. व्हाट इज नीडेड इन दिस एग्जाम is that there are 3 components. इन 3 components में one is the prelims exam. अभी यूपीएससी ने आपके 2026 की डेट दी नहीं है, but last week of May, first week of June is when the prelims happens. Prelims is going to happen in May or June of 2026. Mains is going to happen in August of 2026, and interviews most likely will start from January of 2027. Now depending on your interview date, ये 1-1.5 महीना ऊपर नीचे हो सकता है. Now इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट और बहुत डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं. तो हम इन तीनों के कंपोनेंट्स अलग अलग समझते हैं. दे आर नॉट द सेम. इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इज अ लाई. व्हाई इज इट अ लाई? यहां आपको क्या करना है? आपको यहां पर एमसीक्यूज टिक करने हैं. There will be an answer in front of you. You just have to decide what is correct. यहां पर the sheet will be blank. You will have to generate text. You will have to write down things in the mains exam. And यहां पर क्या होगा? You will be speaking to a senior civil servant, so you will have to generate voice. तो तीनों में बहुत डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड है. तो तीनों में बहुत डिफरेंट तरह से अप्रोच करना जरूरी है. दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड नाउ. नाउ देयर इज नो वन वे टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट? कोई एक सही तरीका नहीं है, पर बहुत सारे गलत तरीके हैं. वो सारे गलत तरीके वी विल ट्राई एंड एलिमिनेट वंस वी अंडरस्टैंड these 3 stages of prelims, mains and interview. Let's talk of the prelims stage first. Prelims के exam में there are 2 papers. One is the general studies paper. There are 100 MCQs of 2 marks each, making it a 200 mark paper. For every correct answer you get +2. For every wrong answer you get -1/3 negative marking of 2 marks. So meaning -2/3. Prelims का average cutoff क्या रहता है? What is the cutoff marks for GS in prelims? You will need somewhere around 90 marks. अगर हम पिछले 4-5 साल का ट्रेंड देखें तो अराउंड 90, कभी 92, कभी 88, ये कट ऑफ रहता है. वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम, द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग अंडर द सन इज इन द सिलेबस, है नहीं ऐसा. 200 मार्क्स का पेपर है, 90 मार्क्स के आसपास कट ऑफ है. क्या हुआ ये? 45%. करंट अफेयर्स कितने थे इसमें? 15%. बुक्स कितनी थी? 85%. अब शायद समझ आ रहा होगा कि क्यों करंट अफेयर्स करे बिना भी ये एग्जाम निकलता है. सेकेंड पार्ट ऑफ प्रीलिम्स इज CSAT, also known as Civil Services Aptitude Test. यहां पर होते हैं 80 क्वेश्चंस इंटू 2.5 मार्क्स ईच. ये भी होते हैं 200 मार्क्स. यहां भी करेक्ट मार्किंग के लिए आपको 2.5, नेगेटिव मार्किंग के लिए, गलत क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं -1/3 2.5. CSAT में कितने नंबर लाना जरूरी है? 33% मार्क्स आपको चाहिए टू क्लियर द सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. नाउ जीएस में क्या आता है? जीएस में हमारे आते हैं सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज. CSAT में क्या आता है? 3 चीजें आती हैं: लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बेसिकली इंग्लिश और मैथ्स. ठीक है, ये हमारे 2 पेपर हैं. अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस यहां पर लिखा है. आज के बाद
आपको अगर यूपीएससी का कुछ भी समझना है, कुछ भी जानना है, इफ देयर इज एनीथिंग that you want to know and understand from this day forward, you will only do it through the official syllabus only. सिलेबस कहां मिलेगा आपको? आप सर्च करोगे नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी, आप इस नोटिफिकेशन से ही लोगे जो लोगे, बिकॉज दिस इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड इसमें कुछ गलत होने का चांसेस नहीं है, राइट? प्रीलिम्स के दो पार्ट्स हैं, एक है जनरल स्टडीज, एक है सी सैट। जनरल स्टडीज का सिलेबस यहां लिखा है। जनरल स्टडीज का पेपर 1 है 200 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर होता है। अब व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट आर आस्क्ड, उसी सिलेबस को थोड़ा कंडेंस करके लिखा है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ancient and medieval history of India, science and technology, environment and ecology, and current affairs of national and international importance. That means even international relations is an important subject. तो prelims के लिए हमें ये subjects पढ़ने हैं, right? So there are in total 7 subjects and 1 topic of current affairs. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subjects and 1 topic of current affairs. ये है हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। अब प्रीलिम्स में हो क्या रहा है? प्रीलिम्स में हो रहा है एमसीक्यू, recognition of the right answer. What you have to do is recognize the right answer. देखो, एमसीक्यू जब भी होता है ना, एमसीक्यू इज मेड डिफिकल्ट और इजी बाय द ऑप्शंस दैट इट हैज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलो एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथ? ए 7516 kilometers, B 7517 kilometers, C 7518 kilometers, D 7519 kilometers. India's coastline is actually 7516.7, and if you round this off, the answer should have been B. But anyway, that's not the point. The point is कि अगर इसी एमसीक्यू में मैं आपको ऑप्शंस देता, A 1000 किलोमीटर्स, B 2000 किलोमीटर्स, C 3000 किलोमीटर्स एंड D 7500 किलोमीटर्स, तो ये बहुत आसान हो जाता। ये डिफरेंस समझ रहे हो आप इन दोनों में? So MCQ is made difficult or easy by seeing the options that are in front of you, है ना? जैसे ऑप्शंस उतना मुश्किल एमसीक्यू। यहां पर मैं आपसे सॉल्व नहीं कराना चाह रहा था, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू। अब ये जो क्वेश्चन है, ये है प्रीलिम्स का क्वेश्चन। नॉट एग्जैक्टली, दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड एवर, बट दिस इज द सॉर्ट ऑफ स्किल यू रिक्वायर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है कि यहां पर ये स्किल चाहिए ऑफ माइन्यूट रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग, इन डेप्थ रीडिंग एंड रिमेंबरिंग। डायरेक्ट फैक्ट्स, जनरली इतने डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं पूछे जाते, बट माइन्यूट डिटेल्ड रीडिंग इज रिक्वायर्ड। अब इसी चीज पे अगर मेंस में क्वेश्चन आना होता, इसी टॉपिक पे अगर मेंस में क्वेश्चन आना होता, और आ भी चुका है, तो पता है क्या क्वेश्चन आता? विच हैज एक्चुअली कम इन द मेंस ऑफ 2022। Given India's vast coastline, how can the problem of maritime security be solved? Now, आप डिफरेंस समझो बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस। ये है मेंस, दिस इज द मेंस एग्जाम।
and this is the prelims exam. So you need to understand that there are very different skills required. यहां पर there is an exact answer. यहां पर everybody will have a different answer. Right? बहुत डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड है. तो जब हम प्रीलिम स्टेज की बात करते हैं, प्रीलिम स्टेज में फर्स्टली देयर इज अ जीएस पेपर जिनमें ये 7 सब्जेक्ट हैं, और एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा जहां पर हमें माइन्यूट डिटेल्ड रीडिंग करनी है. दूसरा पेपर जो होगा वो होगा सी सैट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. इसमें यूपीएससी ने क्लियरली लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी फिक्स्ड एट 33%. तो आपको बस 33% मार्क्स लाने हैं. इसमें क्या पूछते हैं वो? कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी. बेसिक न्यूमरेसी ये कहते हैं क्लास 10 लेवल. पेपर कहीं से भी क्लास 10 लेवल का नहीं होता, पेपर क्लास 10 लेवल के ऊपर का ही मिलता है आपको. बट सिंस इट इज 33%, इट इज डूएबल. ठीक है. नाउ ये हुई बात हमारी प्रीलिम्स की. क्या करना है यहां पे? एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. When you clear the prelims, we will take an example of two persons, Mr. A and Mr. B. Prelims cutoff this year was 88 marks. Mr. A scored 188 marks, Mr. B scored 89 marks. अब मेंस में क्या इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं? Yes or no? Is there a difference between them now in the mains exam or not? No, there is no difference between them now, because अब ये मार्क्स मैटर नहीं करते. अब ये दोनों ही लोग मेंस एग्जाम देंगे, एंड दिस इज वेयर द डिफरेंस विल बी क्रिएटेड. मेंस का पेपर इज इन माय ओपिनियन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट daunting papers ever designed for the human mind. मेंस के पेपर में there are going to be 7 papers that are going to be marked, जिनके मार्क्स आगे काउंट होंगे, and there are going to be 2 qualifying papers. So you are going to write a total of 9 papers in 5 days. तो मेंस का एग्जाम कैसे होता है? पहले वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे. यहां पेपर होता है सबसे पहले एसए का, then general studies paper 1, general studies paper 2, general studies paper 3, general studies paper 4, Indian language paper, whatever Indian language you choose, this is a qualifying paper. English paper on Saturday of next week, then optional paper 1, optional paper 2. ये पूरा फॉर्मेट है. इसमें से ये जो 2 पेपर्स हैं, these 2 papers are qualifying papers, and since they are qualifying papers, their marks do not get counted in the merit. The other 7 papers, these and these, इन 7 के नंबर काउंट होंगे. These are 7 papers of 250 marks each, 1750 marks. अब how much do you think you need to score in these 1750 marks to clear the mains exam? हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं. अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, how much do you need to score here? Minimum amount of marks you need to score here to get to the next stage. Minimum amount of marks required here to just get to the interview stage are 740. इतना टफ है ये एग्जाम कि 1750 में से 740 लाके आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हो. नाउ हाउ मच मार्क्स डज द टॉपर स्कोर? 900. At 900 marks in the mains, you can be sure that you will be in the top 10 in the rank list. Top 10 में आने के लिए आपको 900 नंबर चाहिए. The topper will also score somewhere around 900.
That's all. I scored here close to 780 marks and my rank was 297. तो ये बहुत कंपेटिटिव गेम है. 740 पे आप जस्ट इंटरव्यू दोगे, 780 पे आप IRS बन गए, 850 पे आप IAS बन जाओगे कंफर्म, 800 पे भी आप IAS बन जाओगे. सो एवरी मार्क, एवरी सिंगल मार्क मैटर्स. अब once this is done, then the people who get selected will go to the interview. Interview is 275 marks. Your final score is your mains marks plus your interview marks. Mains for 1750, interview is 275, total बना 2025. 2025 में से whatever your score is determines your rank. Now अपनी कहानी मैं आपको बताता हूं. मेरा 2025 में से स्कोर था 970. क्या रैंक हुई इस पे? ऑल इंडिया रैंक 297. इसमें अगर मैं -11 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 959. इसमें अगर मैं +11 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 981. 959 पे आउट ऑफ द लिस्ट, नो सिलेक्शन. 981 पे 210 रैंक. 11 नंबर पे हाउ मेनी रैंक्स चेंज्ड? 87 रैंक चेंज्ड. 11 नंबर कम पे लिस्ट से बाहर, सिलेक्ट ही नहीं हुए, दोबारा पेपर दो. सो every single mark at this stage means the interview matters. रियल फाइट यहां है. अब मेंस का सिलेबस देखते हैं. मेंस हैज, like I told you, 2 language qualifying papers and 7 marked papers. You can pick. एक इसमें से इंग्लिश होगा, सेकेंड इंडियन लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो. जैसे मैंने हिंदी चूज की थी, हिंदी, मराठी, बंगाली, असमीज. यू कैन चूज द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस. फिर 4 पेपर हैं जनरल स्टडीज के. एंड लेट मी टेल यू, देयर इज नथिंग जनरल अबाउट दी स्टडीज. इसमें कुछ जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक स्टडीज हैं. GS1 में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी. GS2 में आता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज एंड गवर्नेंस. GS3 में आता है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी. GS4 में आता है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. एस्से के आते हैं 2 एस्सेज विच वी हैव टू राइट ऑफ 125 मार्क्स ईच. 2 एस्से मिलेंगे, 8 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से 2 एस्से लिखने होते हैं. 125 नंबर के 2 एस्से लिखने हैं. और फिर है हमारा ऑप्शनल पेपर. अब अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखो, इफ यू लुक एट दिस स्लाइड केयरफुली, मैंने कुछ चीजों को तो सर्कल किया है और कुछ चीजों को सिर्फ अंडरलाइन किया है. इफ वन ऑफ यू इज स्मार्ट इनफ, कैन यू टेल मी मैंने क्यों किया ऐसा? व्हाई डिड आई सर्कल सम थिंग्स एंड अंडरलाइन द अदर थिंग्स? यहां पर क्या है, व्हाटएवर इज बीन सर्कल्ड, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज अ एक्सक्लूसिव थिंग फॉर मेंस. ये सिर्फ मेंस में आता है. बट जैसे कि इकोनॉमी या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो भी अंडरलाइंड है, वो दोनों प्रीलिम्स और मेंस में आता है. तो इसका से हमें क्या मैसेज मिला कि मेंस का सिलेबस इज मच मोर. मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा है रिलेटिव टू प्रीलिम्स का सिलेबस. प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा है रिलेटिवली. जो प्रीलिम्स में आ रहा है वो तो यहां पूछा ही जा रहा है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, वो तो यहां पर है ही. बट इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, पूरा एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, एस्से, ऑप्शनल, ये सब
नहीं है प्रीलिम्स के सिलेबस में. सो मेंस इज अ मच more difficult exam, much bigger syllabus, lot of more things to read. समझ आई ये बात? अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है. देखो, मेंस की डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, मेंस की डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे, बट एटलीस्ट आपको समझ आएगा कि पेपर होता कैसा है. मैं आपको एक पेपर मेंस का बता सकता हूं एग्जाम्पल. जैसे मान लीजिए जनरल स्टडीज 1 का पेपर हुआ, ये पेपर होगा 250 मार्क्स का. इस 250 मार्क्स के पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे. 10 मार्कर क्वेश्चन होंगे. 10 क्वेश्चन इंटू 10 मार्क्स. 15 मार्कर क्वेश्चन भी होंगे. 10 क्वेश्चन इंटू 15 मार्क्स. ये हुए 100 मार्क्स, ये हुए 150 मार्क्स. अब है रिटन पेपर, बट वहां पर जो पेजेस दिए जाते हैं आपको लिखने के लिए वो लिमिटेड हैं. 10 मार्कर में आपको 2 पेजेस ही मिलते हैं पर क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखा होता है, ऐसी होती है मेंस की बुक. यहां पर क्वेश्चन लिखा है, ये पेज है, नेक्स्ट पेज है, अगले पेज पे फिर क्वेश्चन लिखा होगा. यहां क्वेश्चन लिखा है तो आपको यहीं पे आंसर करना है. इससे ज्यादा स्पेस आप नहीं ले सकते. एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा शीट्स आर नॉट अलाउड. सो 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच, 10 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स ईच. ये हुए 100 मार्क्स, ये हुए 150 मार्क्स. टोटल कितने हुए? 250 मार्क्स. टाइम कितना मिलता है हमें एक मेंस का पेपर लिखने के लिए? 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे. इसको कैसे डिवाइड किया जाता है? 70 मिनट्स आप दोगे यहां इन 10 क्वेश्चंस के लिए, और 110 मिनट्स आप दोगे यहां इन 10 क्वेश्चंस के लिए. तो ओवरऑल फॉर एवरी 10 मार्कर क्वेश्चन you will have to write 2 pages in 7 minutes. For every 15 marker question, you will have to write 3 pages in 11 minutes. ये है एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन. अब सोचो, on a complex socio-economic issue, you will have to write 2 pages, understand the question in 7 minutes, and you have to write it better than others. हर एक मार्क भी मैटर करता है. तो मेन फाइट यहां है. प्रीलिम्स में क्या हो रहा था? एमसीक्यू रिकॉग्निशन. यहां क्या हो रहा है? टेक्स्ट जनरेशन. तो ये एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है. ये बहुत मेहनत का काम है, प्रीलिम्स से ज्यादा मेहनत का काम है. और ये आपको करना कैसे है? आप सबसे पहले फ्राइडे को 2 एस्से लिखो, सैटरडे को 9 से 12 सुबह GS1 का पेपर लिखो 3 घंटे का, 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा. GS2 फिर 3 घंटे का पेपर लिखो. अगले दिन जाओ फिर GS3 का पेपर लिखो. अगले दिन जाओ फिर GS4 का पेपर लिखो. इट इज अ ग्रूअलिंग डिफिकल्ट प्रोसेस. मेहनत का काम है मेंस की पढ़ाई करना, राइट? एंड दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग. जितने फाउंडेशन कोर्सेज हैं, एटलीस्ट मार्केट का तो मैं यही कह सकता हूं, मैंने भी जो फाउंडेशन कोर्स किया था, करने के बाद, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, करने के बाद मुझे मेंस के बारे में कुछ नहीं पता था. बट वो प्रॉब्लम, ये गलती हम नहीं करेंगे कि हम मेंस को इग्नोर करें. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेंस इज एन एग्जाम विच विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. अगर मैं आपको बोलूं कि अभी अपने बारे में 2 पेज लिख दो, अपने बारे में या इस एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में बस 2 पेज लिख दो, और मैं आपको 7 मिनट दे दूं, तो वो भी मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट टू राइट 2 पेजेस अबाउट योरसेल्फ इन 7 minutes. Here you have to write in a competitive environment 2 pages in 7 minutes on a complex socio-economic issue. So this will take effort and skills. Now, lastly we come to personality test, यानी कि interview. UPSC does not use the word interview. They mostly use the word personality test because it is not a test of your knowledge. Knowledge आपकी test हो चुकी है मेंस में. Here what they are checking you: mental caliber of the candidate, intellectual qualities, mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, variety and depth of interest, ability for social cohesion, leadership, intellectual and moral integrity. So when we are talking about the personality test,
होता कैसे है? Let me tell you how the personality test happens with my own experience. You will be asked to go into a room, a small room, जहां पर there will be a table somewhat of this sort. कभी कभी there are, this is for example in my room the table was different. There was a big table like this, one table like this, one table like this. You are sitting here and there is a small table in front of you. यहाँ पर there will be the chairman. मेरे इंटरव्यू बोर्ड में जो चेयरमैन थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर. Then there will be member 1, member 2, member 3, member 4. These are the members that are sitting there. तो 4 members बैठे होंगे और यहां पर आप बैठे होंगे. Now आप इन लोगों को इमेजिन करो. There are 5 bureaucrats, all of them, या army generals for that matter, all of them are 60 plus years in age. They have spent 30 plus years in the government. And I, when I was giving my interview, had not even spent 30 years on the earth. I have still not spent 30 years on the earth. Okay? So, आप उन लोगों से बात कर रहे हो. You are talking to people who have spent more time on the government than you have spent on this earth. So, इस time पे maintain your confidence, your composure, your calmness is a very difficult thing to do. और ये एक दिन में डेवलप नहीं होता. तो ये जो स्किल्स हैं, these are skills that you need to nurture from today. आपको इंटरव्यू की अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है. It is just you need to ensure कि जैसे आप बात करते हो, the way you communicate, the way you think has to be balanced and calm from today. तभी जाके 2 साल बाद ये यहां पर एग्जीक्यूट होगा. Otherwise it will not get executed. And plan for 2026. क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज 300 मार्क्स का पेपर होता है. क्वालिफाइंग मार्क्स आर 75. इफ यू आर अ नेटिव स्पीकर, अगर आपको नॉर्मली बोलना आता है उस लैंग्वेज को, तो आप ये दोनों एग्जाम्स क्लियर कर लोगे. इट वाज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. अब बात करते हैं 2026 की प्लानिंग की. व्हाट इज द प्लान दैट आई नीड टू फॉलो? ठीक है, मैं बात करूंगा डिटेल में एनसीईआरटीज की, मैं बात करूंगा डिटेल में न्यूज़पेपर की, बट एक ब्रॉड आइडिया लेते हैं. पहले कुछ सब्जेक्ट्स हमने देखे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं. एंड दीज आई कॉल फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, बिकॉज जब तक आप ये 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स. तो हमारा पहला गोल क्या है? 2027 की भी मैं बात करूंगा. हम ऑर्डर में चलते हैं. पहला गोल हमारा क्या है? व्हाट इज माय फर्स्ट गोल? माय फर्स्ट गोल इज टू अंडरस्टैंड दीज फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, बिकॉज ये प्रीलिम्स में भी आने हैं, ये मेंस में भी आने हैं. ठीक है. व्हाट आर दीज फाउंडेशन सब्जेक्ट्स? दीज आर 4 सब्जेक्ट्स. पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. हिस्ट्री में यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री भी है, एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मेडिवल हिस्ट्री भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है. ये 4 हैं हमारे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स. बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स, आई नीड टू फर्स्ट डू दीज 4 सब्जेक्ट्स. इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़े बिना मुझे आगे कुछ समझ ही नहीं आएगा. क्योंकि आप देखो, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, इंडिया की कोस्ट लाइन ज्यादा है, उसकी वजह से मैरिटाइम सिक्योरिटी. अब ये मैरिटाइम सिक्योरिटी तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, जो मेंस का टॉपिक है, बट उसके लिए पहले मुझे इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में तो पता हो, और ये मैं कहां पढ़ूंगा? ज्योग्राफी में. तो ये 4 सब्जेक्ट्स आर द फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स, राइट? These are the first 4 subjects that I have to read, and I have to read properly. सबसे पहले सब कुछ हटा के, कोई कुछ भी कहता रहे आपको, करंट अफेयर्स कर लो, ऑप्शनल कर लो, आंसर राइटिंग कर लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, सबसे पहले आपको ये 4 सब्जेक्ट आने चाहिए. एंड व्हाट डू आई मीन बाय ये 4 सब्जेक्ट्स यू शुड नो? देयर आर 4 सब्जेक्ट्स एंड यू शुड नो देम.
लेट मी डिफाइन दिस वर्ड फॉर यू. नो देम मीन्स कि जो इनकी स्टैंडर्ड बुक है, मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड बुक की, जो इन पे आज तक यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, इसमें से इफ आई आस्क यू एनीथिंग, अभी मैं आपसे पूछूं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, तो आप वो बता पाओ. ये नहीं बोलो आप कि मेरे नोट्स में लिखा है, ये नहीं बोलो आप कि मैंने रिवाइज नहीं किया अभी, ये नहीं बोलो आप कि पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया. नहीं. You should know means you should know right now. For example, I can say with confidence that the major things in these foundation subjects I know right now. If you ask me something right now from these 4 foundation subjects, I can tell you. Right? Because these are the first things you have to understand. Right? आप सबसे पहले ये 4 चीजें समझोगे, इसके बाद ही होगा जो होगा. ऑप्शनल इसके बाद होगा, करंट अफेयर्स इसके बाद होगा. If there is anything in this process that needs to be done, आंसर राइटिंग इसके बाद होगी. सबसे पहले we need to do these 4. These 4 subjects you need to know by heart 100%. उसके बाद ही कोई गेम आगे की है. अब अगर मैं 2026 की टाइमलाइन की बात करूं, 2027 की भी बात करूंगा. अगर मैं 2026 के टाइमलाइन की बात करूं, तो फर्स्टली आई विल से give about 5 to 6 months. एंड आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास ये लिबर्टी है, 5 to 6 months एंड स्ट्रेंथन दीज फाउंडेशन सब्जेक्ट्स. 5-6 महीने में, लेट्स से समवेयर अराउंड March to April of next year, let's say on April 1st of next year, you know these 4 foundation subjects properly. If you can do this, you are better than 50% of the aspirants out there. ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं. 50% लोगों को ये भी नहीं आता आज तक. अटेम्प्ट दे चुके हैं वो मल्टीपल, उन्हें ये नहीं आता है. Forget everything and just do these 4 foundation subjects first. Then what do you do? Then you do mains preparation. हमने क्या देखा था? More syllabus, tougher paper. So somewhere जब आप अप्रैल के एंड तक आप ये काम कर लोगे, थोड़ा सा डिले होगा, ब्रेक्स होंगे, यू विल सिलेक्ट योर ऑप्शनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गिविंग स्पेस टू योरसेल्फ. फ्रॉम जून टू डिसम्बर you should ideally only focus on the mains exam. ठीक है, इसको मैं अभी आपको लॉजिकली समझाऊंगा. Then let me just write it here. I will start from, let's say, November of 2024. November 2024 में I start. By April of 2025, I will do my foundation subjects, keeping 1 month May as a reserve. From June to December of 2025, I will focus on mains preparation. Then from January 2026 to May 2026, I will prepare for prelims specifically. I have anyway read the foundation subjects जो prelims में आते हैं. मुझे यहाँ mainly revision का काम करना है, थोड़ा सा खुद को add करना है prelims के लिए. Then from May 2026 to August 2026, I will do again mains preparation. अब मई में क्या है? मई में मेरा एक्चुअल प्रीलिम्स है. दिस इज व्हेन माय prelims of 2026 is going to happen. This is when my mains of 2026 is going to happen. अब ये ऐसे क्यों स्ट्रक्चर्ड है? मोस्ट जगहों पे, और मेरे फाउंडेशन कोर्स में भी यही प्रॉब्लम थी, मोस्ट सेल्फ स्टडी में भी यही प्रॉब्लम रहती है कि यहां से यहां तक प्रीलिम्स की ही तैयारी चल रही है.
फिर यहां से यहां तक भी प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है और प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता है, जैसे मेरा भी हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर। बट फिर आप मेंस कैसे दोगे? मेंस इज मच टफर, syllabus is much more and you have only 3 months. So before going for the prelims prep in January of 2026, at least 80% of my mains preparation should be done. So for doing the mains preparation, I must understand foundation subjects. So this is the plan that you need to follow. पहले you do your foundation subjects by the end of April. मैंने रिजर्व मंथ रखा है आपके लिए. From June to December you focus solely on mains. Then from January to May focus on prelims. Then clear the prelims, give the mains and then go forward. इसके बाद इंटरव्यू प्रेप होगी. आप लिख लो इसको, नोट कर लो. अभी बात करूंगा मैं डिटेल में इस सब के बारे में, बट आई वांट यू टू नोट दिस डाउन. एंड दिस इज द सेम शेड्यूल दैट वी फॉलो इन आवर फाउंडेशन कोर्स हियर, क्योंकि वो शेड्यूल मैंने ही बनाया है. आप इसको लिख लो, सेव कर लो. इफ यू आर गिविंग योर एग्जाम इन 2027, इवन देन आई वांट यू टू राइट दिस. यार मेंस प्रिपरेशन में ऑप्शनल इंक्लूडेड है. मेंस इज जनरल स्टडीज, एस्से, ऑप्शनल. ये तीनों चीजें यहां पर इंक्लूडेड हैं. मैं अज्यूम कर रहा हूं आप ये तीनों चीजें यहां पे करोगे. अब ये तो हमने अभी देखा है हमारा ब्रॉड प्लान. व्हाट डज अ वीकली प्लान लुक लाइक? देखो, इफ व्हाट यू आर रीडिंग थ्रू द वीक, यू आर नॉट रिवाइजिंग ऑन द वीकेंड. जो आप वीक में पढ़ रहे हो आप वीकेंड पे रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो वो पढ़ाई बेस्ड है. तो आइडियली यू शुड स्टडी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एंड रिजर्व संडे फॉर रिविजन. स्टडी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे and reserve Sunday for revision time. This is what is a weekly schedule for you. Weekly. ठीक है. अब what does an ideal day look like? An ideal day means 8 hours of study. I know यहाँ working professionals के कुछ questions होंगे. I will talk about it. But 8 hours daily is the ideal day, जिसमें से 1 hour is dedicated to revision through a strategy called active recall. What is active recall? I will tell you. ठीक है. अब 8 घंटे रोज पढ़ना अभी से आपके लिए मुश्किल होगा, राइट? सो वी विल कीप दिस इन माइंड दैट बाय अप्रैल नेक्स्ट ईयर व्हेन यू फिनिश योर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, you should be in a position where you are able to read 8 hours daily with 1 hour of revision every day, and Sunday को I will give you a break after you revise in the morning. Sunday morning में आप revise करोगे, आप test दोगे, and then the rest of the day of Sunday is off for you, right? And this is exactly what we do here also. So our idea is, the way we are structuring this is कि Monday to Saturday you have a class and then you read after that. क्लास में आपका काम आसान हो जाता है, यू डोंट हैव टू देन गो फॉर डिफरेंट बुक्स. संडे को आप सुबह पहले एक टेस्ट दो उसी चीज का जो आपने यहां पे पढ़ी है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द डे इज योर ब्रेक, एंड देन यू कीप रिपीटिंग दिस वीक आफ्टर वीक, वीक आफ्टर वीक, वीक आफ्टर वीक. ठीक है. दिस इज द आइडिया. आप खुद पढ़ो, यहां से पढ़ो, कहीं और से पढ़ो. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू एवरी डे. तभी मैंने वहां लिखा था बी बोरिंग. You need to be boring. तभी ये बात बनेगी. लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है, 2 साल का एग्जाम है, मुश्किल है. बोरिंग होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. अब ये क्वेश्चन पहले ये डिस्कस करते हैं. 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. 6th to 12th की एनसीईआरटीज
टोटल हैं 43 एनसीईआरटीज जो आपको रीड करनी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये 43 एनसीईआरटीज यू नीड टू रीड, रिवाइज एंड रिटेन, तो आपको क्या लगता है कि आप कितना टाइम लगा दोगे इस काम में? वर्किंग और कॉलेज वालों के लिए मैं बात करूंगा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। रीड, रिवाइज एंड रिटेन दीज 43 एनसीईआरटीज आप कितना टाइम लगा दोगे? अगर आप 3 से 2 महीने में कर लोगे तो इट इज माई सल्यूट टू यू। ये 6th क्लास की एनसीईआरटीज नहीं है, ये 12th क्लास की भी एनसीईआरटी है। मेरे हिसाब से इट विल टेक 5 to 6 months, और let me put it in a different way, it took me 5 to 6 months to do this, ठीक है। अब इन 43 एनसीईआरटीज में से प्रीलिम्स 2024 में कितने क्वेश्चन आए आपके हिसाब से? एनसीईआरटीज तो फिक्स हैं, कितने क्वेश्चन आए प्रीलिम्स 2024 में इन एनसीईआरटीज से? क्वेश्चन आए 14 आउट ऑफ 100, है ना। 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 के लिए मैं 6 मंथ्स नहीं लगाऊंगा। 6 मंथ्स में मैं आपको पूरा प्रीलिम्स पढ़ा सकता हूं, फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश आई कैन टीच यू द एंटायर प्रीलिम्स इन 6 मंथ्स, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? What is the way to go about this? The way to go about this is you differentiate. 6th to 10th की एनसीईआरटीज हैं अलग. Why will you read something that was written for a 6th class or 7th class student? आपका मेंटल लेवल उससे बहुत ऊपर है. और इसको डिफरेंशिएट करो 11th 12th की एनसीईआरटी में. In a lot of subjects these are the standard books themselves. बहुत सब्जेक्ट्स में ये स्टैंडर्ड बुक्स खुद हैं, राइट? तो या तो आप ये पढ़ लो, राइट, स्टैंडर्ड बुक्स के साथ. स्टैंडर्ड बुक्स की मैं बात करूंगा, और ये आप पढ़ो आफ्टर यू आर डन विद दिस. सो रीड दिस फर्स्ट, देन व्हेन यू रीड दिस यू विल हार्डली फाइंड एनीथिंग न्यू एंड यू विल नो व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज नॉट रेलेवेंट. या इवन इफ यू इग्नोर दिस इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील. तो हमें 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट वी आर रीडिंग, और उसके साथ हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है. तो ये एक मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूं. फॉर एनी सब्जेक्ट दैट यू आर रीडिंग, focus on 11th 12th and standard books, not on this. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो एनसीईआरटीज में से ज्यादा हमें प्रायोरिटाइज करना है स्टैंडर्ड बुक्स को. अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे. When to read the newspaper? ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए मेरे सामने आज का न्यूज़पेपर है. आई होप दिख रहा होगा सबको, ठीक है. मैं ये पढ़ के बताता हूं आपको. लेट मी रीड दिस न्यूज फॉर यू. दिस सेज सेंसेक्स प्लंजेस 7.5% in a month to below 80,000. Record FII outflows in October. Before I understand the Indian economy, before I understand what is Sensex, what is FII, foreign institutional investor का मतलब क्यों होता है और क्या होता है, why do they pull out from the Indian market, why when the US Federal Reserve raises its interest rates people stop investing in the Indian economy and go back to the American Central Bank and purchase US Treasury bonds. जब तक मुझे ये बात नहीं पता, this news makes zero to little sense for me, और मैं 2-2.5 घंटे लगा दूंगा इस न्यूज़पेपर को पढ़ने में. Disengagement starts at 2 points along LAC in Ladakh, likely to be completed month end. What is the line of actual control? Why is it different from line of control? उसका नाम LOC है पाकिस्तान बॉर्डर के साइड पे, इधर नाम LAC है. What is the Chinese strategy of Tibet is the palm and there are 5 fingers? Why is there constant engagement on the LAC?
Should India allow Chinese foreign direct investment into India or not? Why is the Galwan airstrip a major challenge in India-China relations? जब तक मुझे ये बातें नहीं पता, then this news is not relevant for me. मेरे को समझ ही नहीं आएगी. So like I said before, anything, ये क्वेश्चन कुछ भी होता, when to select optional, when to start optional, when to read newspaper, when to do answer writing, if this question was anything, the answer would have been the same, after foundation subjects. जब तक ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तब तक बात नहीं बनेगी. ये आफ्टर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, जब तक ये 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ लिए ये बात नहीं बनेगी. अगर इकोनॉमी, आई टीच इकोनॉमी हियर, मैं आपको इकोनॉमी अगर पढ़ा चुका हूं, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई व्हेन द यूएस फेडरल बैंक विल रेज इट्स रेट्स, पीपल विल पुल आउट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड परचेज यूएस डेट. राइट, दिस इज द आइडिया. आफ्टर द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आर डन, सबसे पहले ये सब भूल के, सबसे पहले ये हाउ मच करंट अफेयर्स इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर डे योर एग्जाम इज, उससे पहले 1 साल का. एंड सिंस यू आर स्टार्टिंग अर्ली, योर एग्जाम इज गोइंग टू बी इन मे ऑफ 2026, यू कैन अफोर्ड टू स्टार्ट रीडिंग इन मे ऑफ 2025. तो बिफोर मे ऑफ 2025 फिनिश योर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने हैं. तो सबसे पहले क्या करना है, 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट्स. कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं वो? इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी. सबसे पहले ये 4 करने कैसे हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं. हाउ डू यू अप्रोच दीज 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट्स? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री and economy. If you go to my YouTube channel and just search my name on YouTube or type Clarity for UPSC by Dr. Shivan on YouTube, तो इन सब पे वीडियोस बनी हुई हैं. Right? I have made detailed 20-25 minute videos on these. You can start in any order. अगर आप मेरे से पूछोगे, the order would be 1, 2, 3 and 4, but it does not matter. आप किसी भी ऑर्डर में आप इनको पढ़ सकते हो. इकोनॉमी इज समथिंग आई एम टीचिंग हियर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, एंड इकोनॉमी, देन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, और इन वॉट एवर ऑर्डर यू वॉन्ट, दिस इज समथिंग यू नीड टू डू फर्स्ट. सबसे पहले ये 4 सब्जेक्ट करने हैं. कैसे करने हैं? मान लो आपको पॉलिटी से स्टार्ट करना है, गो टू माई यूट्यूब, लुक अप द वीडियो एंड रीड एंड सी. ठीक है, दैट इज वॉट यू विल अंडरस्टैंड. जब ये हो जाएगा, once you have understood this, only then we will move forward to anything else. सबसे पहले हम ये करेंगे. What is second ARC report? मत सोचो, ये स्टैंडर्ड बुक, बेसिक बुक. पहले ये 4, अगर आप वीडियो ढंग से देखोगे तो उसमें सारी बातें बता रखी हैं. If you want to read economy from me, it starts here on 7th November. And if you want to do it yourself, you can look at the videos on my YouTube. Right? That's your call. बट पहले ये 4 चीजें, सब कुछ छोड़ के ये 4 चीजें, बाकी सब इसके बाद. यहां तक क्लियर है? एनी, आई होप मोस्ट थिंग्स आर क्लियर टिल हियर. आपको समझ आया होगा व्हाट वी आर डूइंग. थोड़ा एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा लॉजिक क्लियर हुआ होगा. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, फॉलो द सेम टाइमलाइन. क्यों कह रहा हूं मैं ये? इफ यू आर प्रिपेयरिंग 1 साल और भी बाद के लिए, और आप ये टाइमलाइन एग्जीक्यूट कर देते हो, आपके पास 1 साल है जस्ट टू इंप्रूव योरसेल्फ. देयर कुड बी नथिंग बेटर देन दैट. ठीक है, वापस आते हैं एक बार हमारी टाइमलाइन पे. दोबारा मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं, उसके बाद हम ऑप्शनल की बात करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे नवंबर में. नवंबर टू अप्रैल वी विल डू आवर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स. अप्रैल में हम एक मेजर डिसीजन लेंगे. वी विल सिलेक्ट आवर ऑप्शनल. ऑप्शनल को हम सिलेक्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे.
अप्रैल में सिलेक्ट करेंगे. वी विल सिलेक्ट आवर ऑप्शनल इन अप्रैल, नॉट नाउ. व्हाई? बिकॉज अभी आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा, इकोनॉमी नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, हिस्ट्री नहीं पढ़ा. आप मान लीजिए एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन लेना चाहते हैं, बट यू स्टार्टेड रीडिंग ज्योग्राफी एंड यू रियली लाइक्ड इट. यू रेड द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, यू रेड ज्योग्राफी, यू फेल्ट अरे ये तो बेस्ट सब्जेक्ट है लाइफ का, एंड यू वांट टू टेक ज्योग्राफी ऑप्शनल. सो डिसाइडेड देन. सो ऑप्शनल हम सिलेक्ट करेंगे एट दिस टाइम. देन फ्रॉम मे टू डिसंबर we will prepare for general studies mains, we will prepare for essay, we will prepare for optional. Then from January 2026 we will do prelims specific preparation. Then we will go forward from there. Then we will give our prelims in May 2026. Then in the 3 months we will again do mains specific preparation and give our mains in August of 2026. This is the idea. My optional was anthropology, but again, don't need to select it now, don't need to think about it now. There were also some rumors के ऑप्शनल कैंसिल होगा नहीं होगा. वी डोंट नीड टू एंगेज इन दैट. हम यहां पर डिसाइड करेंगे अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, यहां पर डिसाइड करेंगे वेदर वी हैव टू टेक ऑप्शनल, कौन सा ऑप्शनल लेना है. तब तक ये सिचुएशन वैसे भी क्लियर हो चुकी होगी. अभी हमें क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू? सबसे पहले 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट. जब तक मुझे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं आता, मैं और कुछ नहीं करूंगा. ऑप्शनल व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू सिलेक्ट? अप्रैल, मे ऑफ 2025, नॉट नाउ. तो इसको तभी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे. वी विल डिस्कस दिस व्हेन इट एक्चुअली नीड्स टू बी डिस्कस्ड, नॉट टुडे. बिकॉज अभी यू कैन नॉट पॉसिबली बी श्योर अबाउट व्हाट ऑप्शनल यू वांट. क्योंकि हो सकता है आपको ज्योग्राफी पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगे, या आपको पॉलिटी पढ़ते हुए PSIR लगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज है. तो हम थोड़ा सा वेट करके सबसे पहले वही चीज, सेम मंत्र, सबसे पहले फाउंडेशन सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं. व्हेन टू डू आंसर राइटिंग? सेम आंसर. पहले फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, फिर आंसर राइटिंग. सबसे पहले फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, फिर आंसर राइटिंग, फिर और कुछ भी. अब ये है किसी भी फाउंडेशन सब्जेक्ट के लिए आइडियल अप्रोच क्या है, और ये अप्रोच कैसे डिजाइन की गई है ये भी मैं आपको बता देता हूं. मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूं यहां पे, राइट? सो व्हेन आई एम टीचिंग इकोनॉमी, व्हाट डू आई डू? आई एंश्योर कि 11th और 12th की एनसीईआरटी में से कुछ मिस ना हो. I am currently doing a diploma from Oxford University on economics. तो यहां से I will teach. इन्हीं को मैं रेफरेंस बुक और स्टैंडर्ड बुक मानूंगा. फिर मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज तक इकोनॉमी के आए हैं उनका कंटेंट इसमें ऐड करूंगा. देन आई विल फोकस के आप लोग कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ, आपको रटना ना पड़े. यू डोंट हैव टू मग एनीथिंग अप, यू आर कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट इट. तब जाके मैं मानूंगा कि मेरी इकोनॉमी अब मैंने कर ली है. तो या तो आप ये जॉब आउटसोर्स कर दो, खुद कर रहे हो तो देन इंश्योर ऑल ऑफ दिस इज डन. फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू आर रीडिंग पॉलिटी. NCERT of 11th and 12th you need to know. Standard book is Lakshmikant, this you need to know. रेफरेंस बुक में एक दो चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स और पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इन इंडिया. फिर आप फोकस करोगे कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी रहे. फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और इनमें से जो एडिशनल चीजें होंगी उनको यहां पर ऐड करोगे. एंड लास्टली, इट इज नॉट अबाउट व्हाट इज हियर, इट इज अबाउट व्हाट इज हियर. जब मैं आपसे पूछूं तो आपको सब कुछ आना चाहिए. इट इज नॉट अबाउट व्हाट इज रिटन इन योर नोट्स. जब मैं आपसे पूछूं तो आपको आना चाहिए. दिस इज फॉर एनी सब्जेक्ट अ ब्रॉड अप्रोच. एंड इफ यू वांट टू गो इनटू फर्दर डिटेल्स,
you can go into the videos that are there on my YouTube, right? This is what you do for any foundation subject. पहले ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए ये काम खत्म कर लो, right? For these 4 subjects, first finish this thing firstly, उसके बाद देखेंगे जो करना है होगी. I hope some help must have happened, and at least you've understood कि एग्जाम है क्या, है ना? I hope आप NCERT और न्यूज़पेपर उसमें आप you don't get absorbed in it. I just want to give you one final message that we have understood the format of the exam. We have understood the requirements of the exam. We have understood the do's and don'ts. ठीक है? My final message has to do with mental health. एक competitive exam में it is very common that we ignore our mental health, our peace of mind. ये मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में सिलेक्ट होने से बहुत चीजें मिलती भी होंगी, बट नथिंग मैटर्स मोर देन योर मेंटल हेल्थ. सो इफ एट एनी टाइम यू फील दैट योर मेंटल हेल्थ इज सफरिंग, prioritize that first. You matter more than this exam does. So again, I'd just like to thank you all for joining me and listening to me for such a long time. I know मुझे सुनना उतना आसान नहीं है, but you guys have done a stupendous job of it, and I hope we can meet again sometime, probably if possible in the foundation course or some other webinar that we do. I'd be happy to meet and help. I hope आपकी जो एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग है वो इससे एटलीस्ट बेटर हुई होगी, एंड एटलीस्ट आपको समझ आया होगा कि ये एग्जाम कैसे चलता है, राइट? एटलीस्ट यू वुड हैव अंडरस्टूड how you are supposed to approach things and how things have to be managed in the future. Thank you very much for your patient listening. See you next time. This is Dr. Shivan. Bye-bye. Have a good evening.